एक है कैरेक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो और दूसरा डिस्कस सी एज अ लिविंग बीइंग। ठीक है, ये जो सैंटियागो वाला है ना, ये कैरेक्टर स्केच मैनुअल सैंटियागो का, वो जो रिलेशनशिप वाला मैंने क्वेश्चन करवाया था ना, उससे भी आप निकाल सकते हैं। बहरहाल ये मैंने अलग से भी क्वेश्चन इस पे बनाया हुआ है, क्योंकि ये बड़ा जो है ना, ये इम्पोर्टेंट है। इसका जो करेक्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है। तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 22 है। ठीक है, अच्छा जी, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ सैंटियागो। Santiago, the old fisherman, is the hero of the novel. The old man in the sea. He is rather the only character of the novel. वाहिद किरदार है. Because the other character Emmanuel appears in the novel only in the beginning and at the end. क्योंकि दूसरा जो करेक्टर मैनुअल है वो शुरू में है या एंड पे है, बीच में वो मिसिंग है. We find only the old man dominating the whole novel. पूरे नावल पर जो गालिब करेक्टर है वो ओल्ड मैन है. The old man was thin and gaunt, दुबला पतला, with wrinkles in the back of his neck, यानी इसकी गर्दन पे झुर्रियां हैं, and brown blotches, और भूरे रंग के धब्बे हैं. ये ज्यादा धूप में रहने से ना स्किन पे बन जाते हैं. On his cheeks, which went down the sides of his face. His hands had deep creased scars. Deep creased scars का मतलब है गहरे जख्म, गहरे जख्मों के निशान आते. By handling heavy fish on the cords. Cords कहते हैं डोरी. These scars, ये जो जख्म है, were old and had recovered. अब ठीक हो गए. Everything about him was old except his eyes. यानी आंखें जवान थी. And they were the same color as the sea. और इनका रंग नीला था. And were cheerful and full of determination. बड़ी पुरअज़म थी. Santiago was considered to be an unlucky person. इसके बारे में कहा जाता है कि ये बदकिस्मत है. By the local fisherman, and they made fun of him. उसका मजाक उड़ाते थे. When he returned with empty skips every day. खाली हाथ जब वो कश्ती लेकर आ जाता था. स्किप कश्ती को कहते हैं. But he was not disappointed. लेकिन वो मायूस नहीं होता था. He continued making effort. वो कोशिश करता रहता था. Believed that one day he would catch a big fish. उसका मानना था कि एक दिन वो बड़ी मछली पकड़ेगा. He was an expert fisherman. बड़ा मतलब कि एक्सपर्ट था, माहिर था. And knew all the techniques of fishing. फिशिंग की सारी टेक्निक्स इसको आती थी, सलाहियतें. The old man was a man of strong determination. बड़ा अज़म वाला. He was never disappointed. Without sleep and without food, बगैर सोए बगैर खाए, the old man struggled all alone against the marlin. He remained in most difficult situation for 2 days. 2 दिन बहुत ही मुश्किल में उसने गुजारे, and 2 nights. But he was still full of determination and was eventually successful in catching a big fish. Santiago was a highly imaginative person. यानी बड़ा तखयलाती किस्म का इंसान था. Being all alone in the sea, he often lost in his imagination and usually talks to himself. अपने आप से बातें करता था. He often thought about the young boy Manolin. उसके बारे में सोचा करता था and wanted him to be with him. कहता था काश लड़का मेरे साथ होता. Sometimes he thought about the baseball matches and of the great player. ये player है. डिमैगियो के बारे में सोचता था. Who was his favorite? He also remembered his hand wrestling contest with the Negro. He dreamed about the lions. शेरों को ख्वाब देखता था moving on the seashore at Africa. Santiago was a great philosopher also. बड़ा अजीम फलसफी भी था. He first considered the killing of the marlin as a sin. मारना उसको मार्लिन को गुनाह समझता था. But then he justified it as a professional act. In the same way, he justified the killing of sharks in self-defense. Self-defense यानी कि दिफा के लिए. हाँ जी, क्लियर हो गया ये? जी सर.
और लास्ट क्वेश्चन जी, डिस्कस सी एज अ लिविंग बीइंग, समंदर एक जिंदा किरदार है, ठीक है, यानी ये भी ऐसी है जैसे नॉवल के बाकी कैरेक्टर्स हैं। इन द ओल्ड मैन सी द ओशन प्लेज इट्स रोल एज अ लिविंग बीइंग, कि ये एक जिंदा किरदार है। इट हैज इट्स ओन रिलेशन विद अदर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल, नॉवल के दूसरे कैरेक्टर के साथ इसके ताल्लुकात हैं। इट हैज इट्स ओन टेस्ट, इसके अपने टेस्ट है, वॉइसेस है, एटमॉस्फेयर है, माहौल है, कलर्स हैं। स्टिल इट ट्रीट्स ओल्ड मैन रादर क्रूली, बूढ़े के साथ इसका रवैया बड़ा जालमाना है। व्हेन द शार्क्स कम आउट ऑफ इट, जब शार्क्स बाहर आती हैं समंदर से, टू ईट अप द ह्यूज मार्लन, और मार्लन को खा जाती हैं। बट वी कैन नॉट इग्नोर इट्स जेंटल रोल एज वेल, इसका जो अच्छा रवैया है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। इट गिव्स सैंटियागो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ ट्यूनस, यानी उनको फूड देता है ट्यूना की शक्ल में, श्रिम्प्स की शक्ल में, डॉल्फिन, फ्लाइंग फिश की शक्ल में। द सी इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द फिशरमैन, यानी उनकी रोजी का ये मेन जरिया है। इट टीचेस द सेलर एंड द फिशरमैन हाउ टू लीड देयर लाइव्स, उनको सिखाता है कि जिंदगी कैसे बसर करनी है। इट आल्सो टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन टू द फिशरमैन व्हेन दे नीड, उनको रूहानी असबाक भी देता है। Santiago is a religious man, not a religious man, वो कोई मजहबी शख्सियत नहीं है, but he learns his religious lesson by the ocean, समंदर से वो सीखता है। He prays to God first to let the fish be baited, कि मछली जो है ना वो पकड़ी जाए, baited पकड़ी जाना, and then release him to suffering as well as physical pains. The ocean has its own rules and regulation, इसके अपने rules and regulation है, like the characteristics of a man. इट्स वर्ल्ड इज फुल ऑफ वीड्स, इसकी दुनिया जो है वो जड़ी बूटियों से भरी है, फिशेस से, टर्टल से, गर्ल्स से, क्लाउड से। इट इज अ डिफरेंट यूनिवर्स, ये एक अलग दुनिया है। वेयर लार्ज क्रिएचर ईट्स ऑफ द स्मॉल वन, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। स्टिल मैन रूल सुप्रीम देयर, लेकिन इंसान इसके ऊपर हुक्मरानी करता है। इट इज ऑब्वियस, ये बात वाजिया है, that the old man is not defeated by the ocean, कि बूढ़े को समंदर नहीं हराया, but by his own fault that he went too far out in the sea, कि वो समंदर में बहुत आगे निकल गया। हाँ जी, क्लियर हो गया ये।